Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, this is your EVS class and today we will read Looking Around Environmental Study class 4th. Okay, and students, we have to read chapter number 7 from the window, and this is video 1 of this chapter. Alright, so students, let's start. Chapter 7 from the window. Okay, from means say, window means khidki. So from the window, khidki say. Alright. It is morning now. Last night I went to sleep early. It was too dark to see anything outside. When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon. Okay. That was written on the board at the platform. Appa said that we were going through the state of Goa. So students, it is morning now. Alright. Yah subha है. Okay, means अब सुबह. Now means अब. It is morning. यह सुबह है. अब सुबह हो गई है. Last night, पिछली रात या कल की रात. I went to sleep early. Okay, कल की रात मैं बहुत जल्दी. Early means जल्दी. मैं बहुत जल्दी सोने चली गई थी. मैं बहुत जल्दी सो गई थी. कब? कल की रात. कल रात मैं बहुत जल्दी सो गई थी. It was too dark to see anything outside. It was too dark. Okay, it means यह too dark बहुत अंधेरा. To see देखना. Anything कोई भी चीज़ outside बाहर की ओर. Means कि it was too dark to see anything outside. बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon. When the train stopped early this morning. Okay, when means जब train stop means रुकी. Early this morning. Okay, सुबह. आज सुबह जब train रुकी. I woke up. मैं उठी. ओके, तो क्या कहती है वो? आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मैं उठ गई, मेरी आँख खुली. इट वॉज मडगांव. यह मडगांव था. ओके, मीन्स कि जहाँ पर ट्रेन रुकी थी वह कौन सा प्लेटफॉर्म था? वह मडगांव का प्लेटफॉर्म था. दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म. ओके, और यह बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव. ऑलराइट, दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव. Appa said that we were going through the state of Goa. Appa said, Appa ने कहा that जो we were going, हम जा रहे थे through the state of Goa. ठीक है, तो अप्पा ने कहा कि अब हम गोवा राज्य में हैं. अब हम गोवा राज्य से होते हुए जा रहे थे. ओके, We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. The train started again. I find it difficult to describe the scene outside. It is so beautiful. It is green everywhere. Fields with red soil and green crops, hills covered with trees. Okay, so we got off at the station. All right, got off means उतरना. हम स्टेशन पर उतरे and had some hot tea और हमने गरम चाय पी. Okay, and filled our water bottles और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली. The train started again. ट्रेन फिर से चल पड़ी. I find it difficult to describe the scene outside. I find means कि बाहर का जो नज़ारा था. ठीक है, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड. यह बहुत कठिन है बाहर के नज़ारे को बताना. मीन्स जो बाहर का दृश्य था वह देखने लायक था, उसको डिस्क्राइब नहीं मैं कर सकती हूँ. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. यह बहुत सुंदर था. ओके, मीन्स जो जैसे ही ट्रेन चली तो बाहर का जो नज़ारा था वह देखने लायक था. चारों तरफ हरियाली थी. ओके, इट इज़ सो ब्यूटिफुल. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. चारों तरफ हरियाली थी. फील्ड्स विथ रेड सॉयल. लाल मिट्टी से भरे हुए खेत. ओके, मीन्स कि लाल मिट्टी में उगे हुए खेत और फसलें. filled with red soil and green crops. हरी फसलें, हरियाली. hills covered the tree और
सारे हिल्स जो थे, जो पहाड़ थे, वे पेड़ों से ढके हुए थे। तो उसने क्या देखा? उसने देखा चारों तरफ हरियाली है और बाहर का नज़ारा देखने लायक है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, पेज नंबर 54. Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. I can't make out if it is a river or the sea. The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. Sometime means कभी कभी. Okay, कभी कभी I can see small ponds, कभी कभी मैं छोटे छोटे तालाब देख सकती थी. And far away. Okay, कभी कभी मुझे छोटे छोटे तालाब दिखाई पड़ते थे. एंड फार अवे, और बहुत दूर. बिहाइंड द हिल्स. ओके, और बहुत दूर पहाड़ियों के बीच. मोर वाटर, पहाड़ियों के साथ साथ पहाड़ियों के बीच में पानी दिखाई दे रहा था. आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और द सी. और यह बता पाना मुझे बहुत मुश्किल था. मैं यह नहीं बता पा रही थी कि यह नदी है या फिर वहाँ पर समुद्र है. तो वो कहती है कि बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा था, कहीं पर छोटे छोटे तालाब दिखाई दे रहे थे. मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र, ये नदी है या तालाब है. ओके, या समुद्र है. ओके, द एयर इज़ कूलर, हवा ठंडी चल रही थी. ठीक है. एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, अहमदाबाद की तरह गर्म हवा नहीं चल रही थी. द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. Okay, there are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters, and even tongas and bullock carts with people and goods in them. Some people do not switch off the engines of their vehicle. Even while waiting at the level crossing, there is a lot of smoke and noise. I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this is. Okay, तो अब वे क्या कहती हैं? द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग. अब वे बोलती है कि जो ट्रेन है अभी अभी लेवल क्रॉसिंग मतलब रेलवे फाटक से गुजरी. ओके, जो ट्रेन है वो अभी अभी कहती है कि रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रही थी. ओके, अब रेलवे क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? लेवल क्रॉसिंग होता है अ प्लेस वेयर अ रेलवे क्रॉसेस द सरफेस ऑफ अ रोड. मीन्स समान तल पर सड़क का वह स्थान जहाँ से रेलगाड़ी या रेल पटरी गुजरती है. अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो आप देखते होंगे कहीं कहीं पर जब शहरों के बीच से ट्रेन निकलती है तो वहाँ पे फाटक लगे रहते हैं, रेलवे चैनल गेट लगे रहते हैं, और जितनी देर के लिए ट्रेन निकलती है उतनी देर तक वहाँ पर आवागमन रुक जाता है, मूवमेंट रुक जाता है. एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ रेलवे क्रॉसिंग. ओके, और आपने, अगर आप सिटीज़ में रह रहे हैं वहाँ से अगर ट्रेन गुजरती तो आपने शहरों में भी देखा होगा. तो इसको बोलते हैं रेलवे क्रॉसिंग. जब रेल की जो पटरी है वो सड़क के समतल होकर निकलती है उसे क्या बोलते हैं? लेवल क्रॉसिंग. अगेन आई एम टेलिंग यू, अ प्लेस वेयर अ रेलवे क्रॉसेस द सरफेस ऑफ अ रोड इज कॉल्ड लेवल क्रॉसिंग. ठीक है, तो ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. Okay, तो people are waiting, लोग इंतजार कर रहे हैं on both the sides, दोनों ओर of the crossing, crossing के दोनों ओर लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रेन के गुजरने का. for the train, ट्रेन के to pass, गुजरने का. ओके, तो दोनों तरफ फाटक के पार गाड़ियाँ जैसे बस, कार, ट्रक, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं ना यहाँ पर. तो ये सब क्या कर रहे हैं? ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं. देयर आर बसेस. अब जो इंतज़ार करने वाली गाड़ियाँ हैं उनमें कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल,
cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters, and even tongas and bullock carts with people and goods in them. Okay, there are buses full of people. वहाँ पर जो बसें वेट कर रही हैं रेलवे फाटक के पास, वे लोगों से भरी हुई बसें हैं, कार हैं, ट्रक है, ऑटो रिक्शा है, साइकिल है, मोटरसाइकिल, स्कूटर और टोंगा और तांगा और बैलगाड़ी भी है जिनमें लोग बैठे हुए हैं एंड गुड्स इन दैम, और उसमें सामान भी है। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर तांगा भी दिखाई दे रहा है, बैलगाड़ी भी दिखाई दे रही है, ट्रक भी दिखाई दे रहा है, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, कई चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही। तो ये सब क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के गुजरने का। ओके, some people do not switch off the engines of their vehicle even while waiting at the level crossing. Some people, कुछ लोग do not switch off the engine of their vehicles. कुछ लोग अपनी गाड़ी के इंजन को स्विच ऑफ नहीं करते, बंद नहीं करते, even while waiting at the level crossing. जब वे लेवल क्रॉसिंग पर, रेलवे फाटक पर इंतजार कर रहे होते हैं, तब भी वे अपनी गाड़ी के इंजन को बंद नहीं करते। देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज। इसकी वजह से रेलवे फाटक पर कितना अधिक धुआं, स्मोक मीन्स धुआं, अ लॉट ऑफ स्मोक बहुत अधिक धुआं, एंड नॉइज और शोरगुल होता था। ओके, आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, हाउ डेंजरस दिस इज। आई सी, तो वे कहती है मैंने देखा कि सम पीपल, कुछ लोग गोइंग जा रहे थे अंडर द बार्स। ओके, बार्स के नीचे, ठीक है, जो सलाखें थी, रेलवे फाटक की जो सलाखें हैं उसके नीचे से जा रहे थे, झुक कर उसे पार कर रहे थे। ओके, हाउ डेंजरस दिस इज, कितना खतरनाक यह है। ओके, यह कितना खतरनाक है, लोग इतना खतरनाक काम कर रहे थे, वे वेट नहीं कर पा रहे थे, और जब ट्रेन नहीं दिखाई दे रही थी तो स्पीड में रेलवे फाटक की सलाखों के नीचे से, रेलवे फाटक के नीचे से गुजर रहे थे। ओके, at times our train crosses another train only, and I try to count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast we always got confused. At times, ठीक है, कभी कभी our train, हमारी जो ट्रेन थी, क्रॉसेस, पार करती थी अनदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन को। ठीक है, कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से क्रॉस करती थी, बिल्कुल पास से गुजरती थी। उनी एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरीज इन वन सच ट्रेन। तो उन्नी और मैंने गाड़ी के डब्बे, ओके, कैरीज मीन्स रेलगाड़ी के डब्बे, स्टूडेंट्स, कैरीज मीन्स रेलगाड़ी के डब्बे। तो उन्नी और मैं उस समय उस ट्रेन के, रेलगाड़ी के डब्बों को गिनने की कोशिश कर रहे थे। बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, लेकिन दोनों ही ट्रेनें इतनी तेज चल रही थी कि वे हम नहीं कर पा रहे थे। वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज्ड, हम हमेशा गड़बड़ कर दे रहे थे, हमेशा हमें कन्फ्यूज हो जा रहा था क्योंकि दोनों ट्रेनों की स्पीड बहुत अधिक होती थी। ओके, so students, here are some questions. At first we will solve, okay, we will do these questions. After that, next topic we will read. Okay, so let's see what's the question. What was the difference in the scene that Omana saw from the train on the first day and on the second day? Okay, तो students, what was the difference in the scene? दृश्यों में, जो बाहरी सीन थे, बाहर का जो नज़ारा था, जो सीन थे, उनमें क्या अंतर था? ओमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे, जो पहले दिन ट्रेन से बाहर ओमाना ने देखा, एंड ऑन द सेकेंड डे, और जब दूसरे दिन ओमाना ने बाहर को देखा, तो बाहर के नज़ारों में क्या अंतर था? ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि पहले दिन तो उसने क्या देखा था, विलेज देखा था, सनसेट देखा था, एंड ड्राई माउंटेन देखे थे ब्राउन कलर के। ठीक है, तो उसने क्या देखा था, हमने पढ़ा था ना, ऑन द फर्स्ट डे ओमाना बोर्ड द ट्रेन एंड फ्रॉम हर होम टाउन अहमदाबाद द वेदर वॉज हॉट एंड ड्राई। ठीक है, एंड ऑन द सेकेंड डे सी वॉज एट मडगांव पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा एंड द वेदर वॉज कूल प्लीजेंट देयर। सी सॉ ब्यूटिफुल ग्रीन फील्ड्स एंड हिल्स covered with
trees. Okay. तो क्या डिफरेंसेस था ओमाना के द्वारा देखे गए पहले दृश्य में और दूसरे दृश्य के बीच में, क्या डिफरेंस था? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहले दिन, ओके, ओमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे ब्यूटिफुल विलेजेस, ओके, सुंदर से गांव उसने देखे, द सनसेट उसने देखा, ओके, और उसने क्या देखा? सनसेट तो देखा उसने, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो जो सन था, सन वॉज स्लोविंग सेटिंग, ठीक है, धीरे धीरे सन क्या हो रहा था? क्रॉस हो रहा था. ऑल राइट. Okay, students. So, what was the difference in the scene that Omana saw from the train on the first day? We can say that Omana saw from the train on the first day many fields, villages, setting sun. Okay, and on the second day, she saw small ponds, the hills, fields with red soil and green crops, hills covered with trees. Okay, so this is the difference. All right, so write down, students. Omana saw, Omana, okay, Omana saw many fields, many fields, villages. Omana saw many fields, villages, okay, and setting sun, okay, and setting sun, okay. Setting sun means सूर्य अस्त होते हुए. All right. Omana saw many fields, villages and setting sun on the first day. Okay. On the first day. All right. And on the second day, on the second day, and on the second day she saw fields with red soil and green crops. Okay, green crops, hills and small ponds. Okay, so again I am repeating my answer, students. Omana saw many fields, villages and setting sun on the first day, and on the second day, okay, and on the second day she saw fields with red soil and green crops, hills and small ponds. Okay, now next question, students. Omna saw many kinds of vehicles at the level crossing. Okay, which of them run on diesel or petrol? All right. तो students, this question is ओमना ने रेलवे फाटक में, okay, ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे? लेवल क्रॉसिंग रेलवे फाटक. ओके, ओमना ने रेलवे फाटक में कौन कौन से वाहन देखे, कौन कौन सी गाड़ियां देखी? विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल, और कौन से वे पेट्रोल या डीजल से चलते हैं? ठीक है, उनमें से कुछ गाड़ियां पेट्रोल से चलती होंगी और कुछ उसमें से डीजल से चलते हैं, तो उसे हमें बताना है. तो स्टूडेंट्स, अमंग द व्हीकल्स दैट ओमना सॉ एट द लेवल क्रॉसिंग, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर रन ऑन पेट्रोल, एंड हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक, बसेस, जीप रन ऑन डीजल. ऑल राइट, सो राइट डाउन. Among the vehicles
vehicles. Okay, among the vehicles that Omna saw at the level crossing, at the level crossing, at the level crossing, car, motorcycle, car, motorcycle, scooter, run on petrol. Okay, run on petrol. And heavy vehicles, and heavy vehicles, HEAVY, heavy vehicles, run on heavy vehicles as truck, buses, run on diesel, run on डीजल. ऑलराइट, क्योंकि जो हल्के वाहन होते हैं स्टूडेंट्स, छोटे वाहन और जो हल्के वाहन होते हैं, ओके, जिनमें बहुत ज़्यादा लोडिंग नहीं जा सकती, वे पेट्रोल से चलते हैं. और जो हैवी लोडेड व्हीकल्स होते हैं, बड़े बड़े वाहन जैसे ट्रक, जीप, ओके, एंड बसेस, तो ये सब किससे चलते हैं? डीजल से चलते हैं. Alright, now next question. What was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? तो ये जितने भी गाड़ियाँ थी, इन गाड़ियों से noise means शोर, smoke means धुआं बहुत अधिक आ रहा था. क्यों आ रहा था? तो क्यों वहाँ पर इन गाड़ियों से लेवल क्रॉसिंग में, रेलवे फाटक पर धुआं और शोरगुल क्यों आ रहा था? तो जैसा कि हमने स्टूडेंट्स अभी पढ़ा था, आपको बताया, देयर वर अ लॉट ऑफ व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग एंड वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास. सम पीपल डिडंट नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल्स, दैट्स व्हाई देयर वाज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज. ऑलराइट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुछ लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, वेटिंग करते समय भी अपनी गाड़ी के इंजन को बंद नहीं कर रहे थे, जिससे इंजन के चलने की आवाज़ और जो उसका ऑयल जल रहा था उसका धुआं बहुत निकल रहा था. ओके, तो आप लिखेंगे some people did not some people did not switch off the engines, switch off the engine. Okay, some people did not switch off the engine of their vehicles, VEHICLE, of their vehicles. That's why at the level crossing, okay, at the level crossing, that's why there was a that's why there was a lot of smoke and noise. All right, some people did not switch off the engine of their vehicle at the level crossing. That's why there was a lot of smoke and noise. Now next question, students. What can we do to reduce noise of the vehicle and save petrol and diesel? Discuss. So students, here we have to discuss about this point. So let's see what can we do
रिड्यूस नॉइस ऑफ द व्हीकल्स। ओके, तो मीन्स कि वाहनों के जो गाड़ियों का शोर और पेट्रोल डीजल की बचत के लिए, ओके, वाहनों के शोर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए और पेट्रोल और डीजल की बचत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो इस मैटर पर चर्चा करिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि रिड्यूस नॉइज ऑफ द व्हीकल्स एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल, सो स्टूडेंट्स वी शुड एट फर्स्ट वी शुड use bicycle to go to nearby places and switch off the engines of our vehicles at the railway crossing। तो अगर हम अपने डीजल पेट्रोल की बचत करना चाहते हैं और शोरगुल कम करना चाहते हैं, पॉल्यूशन कम करना चाहते हैं, तो जो हमारे नियरेस्ट प्लेसेस हैं तो वहाँ पर हमें साइकिल यूज करनी चाहिए। ओके, साइकिल क्या होती है? इको फ्रेंडली व्हीकल है ना, ये पर्यावरण को कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाता है और इसमें पेट्रोल और डीजल भी नहीं यूज़ होता है, तो इसकी भी बचत होती है और रिड्यूस नॉइज़ ऑफ द व्हीकल। ओके, नॉइज़ भी नहीं होता है व्हीकल का। तो हमें अपने नियरेस्ट प्लेस में जाने के लिए वी शुड यूज़ बाईसाइकिल। ओके, एंड सेकेंड वन, वी शुड स्विच ऑफ द इंजन ऑफ आवर व्हीकल्स एट द रेलवे क्रॉसिंग। हमें हमेशा रेलवे क्रॉसिंग पर, लेवल क्रॉसिंग पर अपनी गाड़ियों के इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ओके, सो राइट डाउन, वी शुड, ओके, वी शुड यूज bicycle, bicycle, we should use bicycle to go to nearby places। Okay, we should use bicycle to go to nearby places and switch off the engine of our vehicle, vehicle, of our vehicles at the level crossing। Okay, we should use bicycle to go to nearby places and switch off the engine of our vehicles at the level crossing। All right, so now next point students, discuss। Okay, so what we have to discuss, read the question, read the matter। Sometimes people cross the tracks। Okay, ट्रैक मीन्स होता है स्टूडेंट्स रेल की जो पटरी होती है, ठीक है, रेल की पटरी का जो रास्ता होता है उसे ट्रैक्स बोलते हैं। सम टाइम पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड। ओके, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? ऑलराइट, सो समटाइम्स, कुछ लोग कभी कभी, पीपल क्रॉस द ट्रैक्स, ओके, रेल की पटरी को क्रॉस कर लेते हैं, पार कर लेते हैं, इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड, उस समय भी जब रेलवे फाटक बंद रहता है। तो जब क्रॉसिंग बंद रहती है उस समय भी क्रॉसिंग पोल के नीचे से उस रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? ओके, तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी डेंजरस टू क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड। ओके, तो क्या होता है, ये बहुत ही खतरनाक है जब कोई व्यक्ति क्रॉसिंग क्लोज होने के बाद ट्रैक को क्रॉस करते हैं, बिकॉज अगर सडन ट्रेन वहाँ पर आ जाएगी, सडन ट्रेन क्रॉस, देन अ वेरी बिग इंजरी मे बी हैपन। ठीक है, बहुत बड़ी घटना वहाँ पर हो सकती है, बहुत बड़ी चोट आप लोगों को लग सकती है। तो कभी भी जब क्रॉसिंग क्लोज होती है तो वी शुड नॉट ट्राई टू क्रॉस द ट्रैक्स। ओके, तो हमें कभी भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओके, Later, I was sitting near the window with my eyes closed। Now students, 17 मई को ओमना ने फिर लिखना स्टार्ट किया और कितने बजे? 8:30 में, 8:30 बजे उसने फिर से डायरी पे लिखना शुरू किया। तो वे कहती हैं, Later, I was sitting near the window with my eyes closed। ओके, बाद में मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी ही थी। Suddenly, okay, the sound of the moving train changed।
खुड़ खुड़ खुड़, आई ओपन्ड माई आईज। तो वो कह रही मैंने आंखें बंद करके मैं ट्रेन की खिड़की के पास बैठी थी कि अचानक से वहाँ पर जब ट्रेन की जो आवाज़ थी, साउंड जो थी ट्रेन की, चलती हुई ट्रेन की साउंड अचानक से चेंज हो गई और आवाज़ कैसी हो गई, खुड़ खुड़ खुड़। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। गैस व्हाट आई सॉ, सोचिए, अंदाजा लगाइए मैंने क्या देखा। आवर ट्रेन वॉच क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। ओके, तो वो कहती है अंदाजा लगाइए मैंने क्या देखा। तब वो बताती है उसने क्या देखा। अवर ट्रेन, हमारी ट्रेन एक बहुत ही बड़ी नदी से गुजर रही थी और एक बहुत बड़े लंबे पुल के ऊपर से होकर। ठीक है, तो अंदाजा लगाओ, ओमना बोलती है मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी, गुजर रही थी। एज इट वॉच क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। जब यह इट वॉच क्रॉसिंग द ब्रिज, जब यह पुल पार कर रही थी, पुल से गुजर रही थी, इट साउंडेड, तो जो हमारी ट्रेन थी इसकी आवाज़ बिल्कुल अलग थी। ओके, मीन्स कि पुल पर से जाते हुए ट्रेन के जो पहिए की आवाज़ थी वे भी बिल्कुल अलग थी। ओके, एंड द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉच नो साउंड। ओके, रैटल्ड मीन्स खड़खड़ाना, रैटल्ड मीन्स खड़ 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 खड़, जब पहिए चलते हैं घूमते हैं। ठीक है, तो साउंड उसको क्या बोलते हैं, व्हील की जो मूविंग की जो साउंड होती है खड़खड़ाने की, उसे बोला जाता है रैटल्ड। ओके, द व्हील रैटल्ड एज देयर वॉच नो ग्राउंड, तो जो पहिया था वो खड़खड़ाने लग गया क्योंकि वहाँ पर वह किसी ज़मीन पर से नहीं गुजर रहा था। ठीक है, मीन्स की जो पहिए की आवाज़ थी वे पटरी के नीचे ज़मीन की तो नहीं थी। ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो, केवल उस नदी के ऊपर ट्रैक्स थे, केवल ट्रैक था और पानी नीचे दिखाई दे रहा था। तो वो कहती है कि जैसे ही मैंने खिड़की के नीचे से झांका तो मुझे डर लगने लगा। व्हेन आई, ओके, ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो, व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन, जैसे ही मैंने नीचे देखा, आई फेल्ट गिडी। ठीक है, आई फेल्ट गिडी, गिडी मीन्स होता है चक्कर आना, फेंटिंग। ठीक है, तो मुझे चक्कर आने लगे। इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी। ठीक है, यह वास्तव में, स्कैरी मीन्स डरने वाला, यह वास्तव में डराने वाला था, तो मुझे बहुत डर लगा। ठीक है, क्यों डर लगा। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर, नदी जो थी वो पानी से भरी हुई थी। एंड हैड सम बोट्स, और उसमें कुछ नावें चल रही थी, कुछ नावें नदी में थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, फिशरमैन मीन्स मछुआरे। ओके, तो मैंने वहाँ पर कुछ मछुआरों को भी ऑन द बैंक्स, नदी के किनारे देखा। ठीक है, नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और नदी के बैंक मीन्स नदी का किनारा, और नदी के किनारे पर कुछ मछुआरे भी दिखाई दे रहे थे। बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी। आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानती थी। आई वेव्ड एट दैम, वेव्ड मीन्स हाथ हिलाना। ठीक है, मैंने उनको ट्रेन से हाथ हिलाया। बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानती थी। इफ दे कुड सी मी, कि क्या वे मुझे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया पर पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। ओके, alongside our bridge, ओके, alongside our bridge, alongside साथ साथ, हमारे पुल के साथ साथ, there was another bridge for buses and cars। ठीक है, हमारे पुल के साथ साथ एक दूसरा पुल भी वहाँ पर था जो बस और कार के लिए था। this was built differently from ours, और जो ये बस और कार का पुल था ये बनाया गया था differently, बिल्कुल अलग तरीके से। from ours means हमारे पुल से बिल्कुल अलग तरीका का यह पुल बनाया गया था। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। ओके, एडवेंचरस मीन्स बहुत अधिक मज़ा आना, साहसिक इंजॉयमेंट हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही साहसिक मज़ा हमें आ रहा था, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो वे कहती हैं
कि जो वो पुल बना था वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में और मोर एडवेंचरस है, मतलब और ज़्यादा मज़ा है, ठीक है, क्योंकि वो पुल बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ था। ऑलराइट, so now students, here again some questions. Have you seen any bridge? Okay, where? क्या आपने किसी पुल को देखा है, और अगर देखा है तो आपने कहाँ देखा है? तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपने पुल तो देखे होंगे, छोटे पुल या बड़े पुल। ओके, अगर आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो हमारे नियरेस्ट जो घाट पुल है वहाँ पर आप सभी उस पुल से गुजरे होंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यू विल राइट हेयर नो आई हैव नॉट सीन एनी ब्रिज। बट अगर आपने देखा है तो आपका आंसर होगा यस आई हैव, yes I have seen bridges, BRIDGES, क्योंकि दो पुल वहाँ पर है ना अगर हम घाट की बात करें। yes I have seen bridges near घाट, GHAT। ओके, यस आई हैव सीन ब्रिजेस नियर घाट, हाँ मैंने घाट के पास पुल देखे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज क्वेश्चन मार्क वेयर? क्या आपने कभी किसी पुल को क्रॉस किया है? उस पुल को देखकर क्या आप उस पुल से क्रॉस हुए हैं, गुजरे हैं? अगर गुजरे तो कहाँ गुजरे? ओके, सो राइट डाउन यस I have crossed, CROSSED, yes I have crossed the bridge, BRIDGE, yes I have crossed the bridge to गो टू। आप जहाँ भी जाने के लिए आपने ब्रिज को क्रॉस किया है आप वहाँ पर इसका नाम लिख लेंगे। सपोज अगर हम लिखते हैं दिल्ली, ओके, तो आप दिल्ली हमने लिख दिया। अगर आप हल्द्वानी जा रहे हैं आप लिख सकते हैं यस आई हैव क्रॉस्ड द ब्रिज टू गो टू हल्द्वानी। अगर आप कहीं और सिटी में गए हैं तो आप उस शहर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो व्हाट यू विल राइट, यस आई हैव क्रॉस्ड द ब्रिज टू गो टू दिल्ली, टू गो टू हल्द्वानी, टू गो टू लखनऊ, ओके, टू गो टू बरेली। जिस जगह भी आपने पुल क्रॉस करके आप उस जगह पर गए हैं आप वहाँ का नाम लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर? ठीक है, व्हाट वॉज द बिल्ट ओवर मीन्स पुल किस पर बना था, कहाँ पर पुल बना था, किसके ऊपर पुल बना था। ओके, तो क्योंकि पुल भी दो जगह पर, तीन जगह पर बनता है, एक तो पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में क्रॉस करने के लिए पुल बना जाता है, नदी के ऊपर क्रॉस करने के लिए पुल बना जाता है, घाटी के ऊपर क्रॉस करने के लिए पुल बनाया जाता है ना। तो आप लिखेंगे अक्सर जो हम पुल क्रॉस करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, रिवर के ऊपर से होते हुए, ठीक है। सो व्हाट्स योर आंसर, योर आंसर विल the bridge was built over the river. Okay, so write down the bridge, BRIDGE, the bridge was built, BUILT, the bridge was built over the river, over the river. All right, the bridge was built over the river. Now next question, what did you see below the bridge? आपने पुल के नीचे क्या देखा? ओके, मीन्स कि तुम्हें पुल के नीचे क्या क्या दिखाई दिया था। ऑल राइट, तो जब आप पुल से गुजर रहे थे आपने डेफिनेटली पुल से झांका होगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होता है। किसी पुल के ऊपर से जब हम निकलते हैं, गुजरते हैं, तो वहाँ से अपनी गाड़ी के, व्हीकल के विंडो से बाहर को झांकना, ठीक है, तो आपने भी देखा होगा। तो स्टूडेंट्स आपको जो भी चीज़ें दिखाई दी वे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, जब हम नदी के ऊपर बने पुल से गुजरते हैं तो हम क्या देखते हैं, वी सॉ रिवर बिलो द ब्रिज। ओके, क्योंकि नदी तो दिखाई देगी जब हम वहाँ से गुजरेंगे। सो राइट डाउन सॉ रिवर below
the bridge. All right, we saw river below the bridge. Now next question students, find out why bridges are made. अब आप स्टूडेंट्स पता लगाइए कि पुल क्यों बनाए जाते हैं. तो बहुत सिंपल आंसर है. क्यों बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स? टू कनेक्ट टू प्लेसेस सेपरेटेड बाय रिवर और बाय माउंटेन्स. तो कनेक्ट करने के लिए ही बनाए जाते हैं पुलों को. जब दो पहाड़ों को आपस में कनेक्ट करना होता है, दो स्थानों को कनेक्ट करना होता है, या नदी के ऊपर जब उस डिस्टेंस को क्रॉस करना होता है, तो इसलिए वहाँ पर पुल बनाए जाते हैं. सो राइट डाउन, ब्रिज आर मेड across river to connect the two places separated by those river. separated, separated by those river. All right, bridges are made across river to connect the two places separated by those river. Okay, पुल क्यों बनाए जाते हैं? नदी के ऊपर बनाए जाते हैं दो स्थानों को कनेक्ट करने के लिए जो इस नदी के द्वारा अलग हो गए थे. Okay students, now today class is over. Okay, now tomorrow I will be back with new chapters, new portion. Okay, as we can see here, 17 May we have to start tomorrow. All right students, so you revise your work, do your activity work, do your drawing work, learn word meaning and some question answer. All right students, so till then, take care, bye bye, have a nice day.